So we had seen about Sangeeta ji's crossing the river adventure and that rock climbing. Now let's continue with the next topic, a special guest. Guest means मेहमान. So देखते हैं उनसे कौन गेस्ट मिलने आया था उनके कैंप में. After dinner we met a special guest, Bachhendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachhendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Bara Masa Kafal Pako Chaita Meri Chaila. At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. So, who was the guest in their camp? It was none other than Bachendri Pal, who also holds the record of being the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. Okay, she came there to seek the blessings of Brigadier ज्ञान सिंह, जो उनके कैंप के इंस्ट्रक्टर से थे, उनसे मिलने आई थी वो. और बाद में जाके वो इंडिया की सबसे पहली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को के ऊपर चढ़ी थी. कैंप इन द स्नो. We were standing at a height of 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. सो अब इन लोगों को क्या करना था, कैंप करना था, बट वहाँ पे स्नो हो रहा था, स्नोफॉल हो रहा था. तो उन्होंने टेंट को किससे बनाया था, डबल लेयर प्लास्टिक्स था, जिसके कारण वो अंदर वार्म रह सकते, बिकॉज प्लास्टिक के बीच में एयर का जो लेयर हो जाता वो आ, उनको गर्म रखने में मदद करता. तो काफ़ी हवा ववा तो चल रहा था, बट काफ़ी खींचतान के बाद में फाइनली उन्होंने टेंट को बना लिया और उसके अगल बगल में ड्रेन भी बना लिया. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chulha and cooked some food. अब यहाँ पे खाना क्या ले, उनके पास होटल वगैरह तो कुछ है नहीं, ना ही कोई कुक है, इन्हें खुद ही खाना बनाना होता है. तो इन्होंने चूल्हा एक बनाया टेम्प्रेरी स्टोन से और लकड़ी जलाई और फिर उन्होंने खाना भी बनाया. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers, which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. खाना खाने के बाद में उन लोगों ने वहाँ का जितना भी कचरा वहाँ इकट्ठा हुआ था, तो ये नहीं कि बिखेर के रख दिया वहाँ पे कचरा, बल्कि उसे उठा लिया, अपने पास में रख लिया, ताकि जब उन्हें डस्टबिन मिले तो वो उसमें डाल दें. सून वी गॉट इनटू अ स्लीपिंग बैग्स. उसके बाद वो अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए और सोने की तैयारी करने लगे. बट इनके मन में था कि पता नहीं ये कंफर्टेबल होगा कि नहीं, कहीं मुझे ठंड तो नहीं लगेगा. बट इतना थक चुके थे कि इन्हें धीरे से नींद भी आ गया. ये आपको एक स्लीपिंग बैग भी दिख रहा होगा, एक बेबी दिख रही है ग्रीन कलर के ब्लैंकेट जैसा लपटाया हुआ है. सो दैट इज़ अ स्लीपिंग बैग. The next morning we woke up and found that it was snowing. White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept slipping. By afternoon, we had reached snow covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो वहाँ स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़बारी हो रही थी. वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स जो थे वो धीरे धीरे गिर रहे थे. वो एकदम रुई जैसे लगते हैं स्नो फ्लेक जब स्नोफॉल होता है तो. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सो शी हैड नॉट सीन इट बिफोर आई गेस. सो इसीलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था. और जो प्लांट्स एंड ट्रीज थे, सारा ग्रास वगैरह सारी चीज़ें वाइट हो चुकी थी. उन लोगों ने एक साथ मिलके 2700 मीटर्स की चढ़ाई की और ध्यान से चढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहीं कहीं पर फिसल जा रहे थे. बट आफ्टरनून में फाइनली वो ऐसे उन जो माउंटेन्स जिन पे स्नो कवर्ड था वहाँ पे पहुँच गए. और वहाँ पर पहुँच के उन्होंने एक स्नोमैन बनाया और वो लोग स्नोबॉल से खेले भी. लास्ट डे एट कैंप. तो यहाँ पे वो इनका लास्ट डे ऑफ कैंप भी आ गया. दैट वाज 21 फरवरी 1984. देखते हैं उस दिन उन्होंने क्या किया. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing,
singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तो ये लास्ट डे था इनके कैंप का। तो जैसे स्काउट गाइड में होता है ना, कैंप फायर होता है जिसमें सब अपने अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई गाना सुनाता है, कोई डांस करता है, कोई स्टोरी सुनाता है, कोई पोइम सुनाता है, कोई जोक सुनाता है। तो वैसे इन लोग का भी ये लास्ट डे था, तो इन लोगों ने कैंप फायर किया, आग के अगल बगल बैठ के, चारों तरफ बैठ के इन लोगों ने कैंप फायर किया, गाने वाने गाए, जोक्स वोक्स सुने। और जब फिर ऐसे इन्हें पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो गई। फिर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और इनका नाम लिया। तो अब ये डर गई कि अब मैंने क्या गलती कर दी। बट जब इन्होंने अनाउंस किया ज्ञान सिंह जी ने कि इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, तो ये एकदम आश्चर्यचकित हो गई। कि क्यों आश्चर्यचकित हो गई? बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही था स्टोरी के स्टार्टिंग में कि उन्हें डर लग रहा था। फर्स्ट सेकेंड डे उन्हें लग रहा था कि पता नहीं है ट्रिप में कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं। बट बाद में उन्हें लीडर बना दिया गया और उन्होंने इतने अच्छे से सारे चैलेंजेस को कंप्लीट किया कि लास्टली उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। द एक्सपीरियंस रिटन बाय Real experiences of Sangeeta Arora. She teaches in Kendra Vidyalaya Shalimar Bagh, Delhi, and is also a member of this EVS textbook writing team. तो इनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। नाउ एक छोटी सी स्टोरी है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, ये हम देख लेते हैं। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. तो एक 12 साल की लड़की थी जो माउंटेन्स पे रहती थी। वो अपने स्कूल के साथ में पिकनिक पे गई थी। वो माउंटेन पीक चढ़ी थी। कितना ऊंचा था वो? 4,000 मीटर का ऊंचा माउंटेन पीक था। अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी वो वहाँ पे। और वो वहाँ क्यों गए थे? बस फन और एडवेंचर के लिए, मस्ती करने के लिए थोड़ा सा चले गए थे कि एडवेंचर हो जाएगा एक तरह से। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन. और धीरे से क्या हो गया? अंधेरा हो गया और वो लोग नीचे नहीं आ पाए. इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी. और अंधेरा तो हो ही गया, अंधेरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी। माउंटेन्स पे जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, ठंड हो जाता है और डर लगने लगा उन्हें। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट. तो वहाँ अकेले वो छूट गए थे, बिना खाना के, बिना पानी के, और वो बहुत लंबी रात थी। ठंडियों की रात कितनी लंबी होती है। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल. तो ये किसके साथ हुआ था? ये जो बच्ची थी 12 साल की, ये कौन थी? हमारी बछेंद्री पाल थी. Bachendri grew up in Nakori village in the Garhwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. तो ये जो हमारी बछेंद्री पाल जी जो है ना, वो कहाँ पर बड़ी हुई थी? नाकोरी विलेज करके था, गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड स्टेट में। और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ ये संगीता अरोरा जी गई थी ना कैंप करने के लिए, वहीं पर उन्होंने भी अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली थी। किन्होंने लिया था? बछेंद्री पाल जी ने, जो कि उत्तरकाशी में है। और उनके गाइड भी कौन थे? यही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. तो वो बहुत ही एक्सलेंट थी अपने काम में, और वो इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया से करती थी माउंटेनियरिंग, कि उन्होंने बाकी वुमेन को भी माउंटेनियरिंग के कोर्सेज में ट्रेनिंग देने लगी। और 1984 में इनका सिलेक्शन हुआ। माउंट एवरेस्ट पे एक टीम जा रहा था, उसमें इनका भी सिलेक्शन हो गया। किनका? बछेंद्री पाल जी का. Snowstorm. There were 7 women in that 18-member team. On the night of 15th May, the team was very tired and after having reached a height of 7,300 meters. तो इनका जो टीम था पूरा, उसमें कितने लोग थे? 18 मेंबर की टीम थी, जिसमें से 7 महिलाएं थी। और 15 मई की रात को जब वो बहुत थक गए थे सब लोग, और कहाँ पहुँच गए थे वो लोग? 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ अपना टेंट लगाया और सोने चले गए. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग. बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्ली ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम. और अचानक आधी रात को क्या हुआ कि खूब आवाज़ आने लगी, और उनका जो टेंट था वो हवा से, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जिससे उनका टेंट उड़ के कहीं चला गया. देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म. क्यों उड़ के चला गया? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ का तूफान आया हुआ था. बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड.
मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। तो बछेंद्री क्या थी, वो तो मतलब इसके अंदर में बर्फ़ के अंदर पूरी वो हो चुकी थी, दब गई थी बर्फ़ के अंदर में। उन्हें बहुत चोट भी आया था, सर में चोट आया था, बाकी बॉडी में भी चोट आया हुआ था। बहुत सारे उनके टीम मेंबर्स थे, वो भी घायल हो चुके थे। द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। और बाकी मेंबर उन लोगों ने कुल्हाड़ी से और स्नो पिक्स जो होता है उससे खोद खोद के फिर बाकी लोगों को जो दब गए थे स्नो में उनको निकाला। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बछेंद्री वेंट अहेड। तो बाकी के टीम मेंबर तो चले गए अपने बेस कैंप में जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी कैंपिंग की, लेकिन बछेंद्री आगे बढ़ गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडली टुवर्ड्स द पीक। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmat in Nepal. तो जब दूसरे दिन 1:07 हो रहा था दोपहर का, 23 मई का, उस दिन बछेंद्री पाल ने, वही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बछेंद्री पाल जी 8,900 मीटर के हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पीक पे चढ़ गई थी। और उसको क्या कहा जाता है, एक और नाम जो है उनका है सागर मठ। नेपाल में उन्हें उस जगह को सागर मठ कहा जाता है। देर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर। देर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू stand on द टॉप एट द सेम टाइम। तो वो एक ऐसा पीक था, मतलब ऐसा वो होगा ना, पॉइंटेड होगा, तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। बट उनके साथ एक और मेंबर थी। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। तो थोड़ा भी पैर उनका इधर उधर होता, अगर दोनों चढ़ने की कोशिश करते, तो वो कोई एक उसमें से नीचे गिर जाता। इस तरह से वहाँ पर सिचुएशन थी। Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. तो बछेंद्री पाल जी ने और उनके टीममेट ने क्या किया, बर्फ़ को खोदा और वहाँ पे अपने आप को वापस फिक्स करने की जगह बनाई, मतलब अपने आप को खड़े होने की जगह बनाई। खुद को रस्सी से बांधा, हुक से अपने शरीर को फंसाया, जैसा आपने उसमें देखा था ना, रॉक क्लाइंबिंग में देखा था, उस तरह से फंसा के किसी तरह से वो दोनों खड़े हुए। उसके बाद ही उन दोनों के अच्छे से खड़े होने की जगह वहाँ बन पाई। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ हर अचीवमेंट। तो ऊपर से तो उन्हें मौसम की वजह से बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बर्फबारी हो रही थी वहाँ पे, लेकिन अंदर मन में गर्माहट थी। क्यों गर्माहट थी? एक खुशी थी उन्हें कि वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी थी, माउंट एवरेस्ट के पे पहुंच चुकी थी। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. So she was the first woman to reach that peak, first Indian woman to reach the mountain peak, and also the fifth woman in the world. तो इंडिया की वो पहली और पूरे विश्व की वो 5वीं वुमन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है। She was shivering with cold but filled with warmth of achievement. She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. तो जब वो वहाँ पर पहुँची तो सबसे पहले उन्होंने अपना सिर झुकाया, अपना जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारा ट्राई कलर है, उसको वहाँ पर गाड़ा और खूब सारे फोटोग्राफ्स खींचे। वहाँ पे उन्होंने कुल 43 मिनट बिताए हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड पे। कितनी मेहनत से गए थे वो वहाँ पे, तो इस चीज़ को पूरी तरह से अपने अंदर वो फीलिंग को महसूस कर लेना चाहते थे। और इस तरह से वो हमारे देश की पहली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था। आई होप ये आपको स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायर हुए होंगे, आप मोटिवेट हुए होंगे। बाय बाय।